अच्छा देखो भाई, जो लास्ट क्लास में हमने चीज पढ़ी थी दैट वाज रिवर्सिबल रिएक्शंस। और रिवर्सिबल रिएक्शंस हमने 2 क्लासेस में पढ़ा है। क्या बात हो रही थी रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में? रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस दैट कैन गो इन फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएं और एट द सेम टाइम दे कैन आल्सो गो इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन, दोज रिएक्शंस आर नोन एज रिवर्सिबल रिएक्शंस। और एग्जांपल में हमने ये वाला रिएक्शन देखा था, वेयर नाइट्रोजन गैस रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। So this reaction goes in forward as well as in backward direction. And in any reversible reaction, a time comes when the rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction. So at certain point हम कहते हैं कि जब rate of forward reaction और rate of backward reaction equal हो जाता है तो reversible reaction achieve कर लेता है chemical equilibrium. And at chemical equilibrium हमारी क्या बात हुई थी कि जब chemical equilibrium established हो जाता है तो it doesn't mean that reaction has stopped because reversible reaction never stops. रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा डायनामिक होता है। डायनामिक मतलब इट विल कीप गोइंग इनटू फॉरवर्ड एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बन रहा है, तो रिएक्टेंट भी खत्म नहीं होगा कभी, प्रोडक्ट भी खत्म नहीं होगा। तो इट विल कीप हैपनिंग अनलेस इट इज डन इन अ क्लोज सिस्टम। मतलब अगर जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फिर उसी रिएक्टेंट के साथ अगर रहे ना तो कभी भी ये रिएक्शन रुकेगा नहीं। और जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और बैकवर्ड रिएक्शन का मतलब प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट, and the speed of forward reaction when becomes equals to speed of backward reaction, we say that the reversible equilibrium has established a chemical equilibrium. तो when reversible reaction establishes a chemical equilibrium तो उस point पे क्या होता है, concentrations of reactants and products, so concentrations of reactants and products stops changing. मतलब कंसंट्रेशन एक वैल्यू पे आके कांस्टेंट हो जाती है, बट इट डजंट मीन के रिएक्शन रुक गया है। रिएक्शन अभी भी हो रहा है, जितना रिएक्टेंट आगे जाएगा फौरन उतना ही प्रोडक्ट पीछे आ जाएगा, इसलिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट चेंज नहीं होती हुई दिखेगी आपको। अब फिर इसमें हमने ये पढ़ा था, वंस द केमिकल इक्विलिब्रियम है एस्टैब्लिश्ड, इफ यू चेंज एनी ऑफ दीज फैक्टर्स, जिसको हमने कहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, factors affecting position of chemical equilibrium। तो जब रिवर्सिबल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम established हो जाता है, and after that if you let's say change the concentration of either reactants or the products। जी सर हम ये कर चुके हैं। हाँ, बस रिकैप दे रहा हूँ क्योंकि आगे जो हमें चैप्टर करना है वो इसी इंफॉर्मेशन से लिंक्ड अप है सारा। So if you change the concentration of reactants or products, तो क्या होगा, position of equilibrium will shift either to the right hand side or to the left hand side। Let's say if you increase the concentration of reactants, अगर reactants की concentration increase करोगे तो position of equilibrium shift toward right hand side, and right hand side पे जाने का मतलब क्या होता है कि more product is formed and less reactant is formed। On the other hand, if you decrease the concentration of reactants, the position of equilibrium will shift towards left hand side। जहां पे आपने कम किया उस effect को cater करने के लिए reactant की concentration कम हुई है ना, तो अब ज्यादा product reactant में convert होगा ताकि reactant दोबारा से ज्यादा बन जाए। Position of equilibrium will shift towards left hand side, और left hand side पे जाने का मतलब क्या है कि अब reactant ज्यादा बन रहा है, more reactant is formed। Similarly, if you change the concentrations of product की concentration increase करोगे तो position of equilibrium will shift toward left hand side, product की concentration decrease करोगे तो position of equilibrium shift towards right hand side। और दूसरा factor that affects the position of equilibrium वो क्या था, pressure। But pressure only affects the position of equilibrium if the reactants or products are in gaseous state। जरूरी नहीं कि सारे के सारे reactant और product गैस हो, कोई एक भी अगर गैस है तो प्रेशर चेंज करने से पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पे फर्क पड़ सकता है। तो वो फर्क किस तरह से पड़ता है, यू हैव टू चेक द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द रिएक्टेंट हैंड साइड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड।
Let's say if number of moles of gases on the reactant hand side are greater, let's say 4 mole अगर reactant side पे है और 2 mole अगर product side पर है गैस का, तो pressure increase करने से position of equilibrium shifts towards that hand side where number of moles of gases are fewer. जहाँ कम है गैस के मोल्स वहां पे पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगी, और डिक्रीज करने से उल्टा इफेक्ट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर रिएक्टेंट इज फॉर्म, राइट हैंड साइड पे जाने का मतलब मोर प्रोडक्ट इज फॉर्म। जैसे अभी हमने एग्जांपल ली ना, नाइट्रोजन गैस रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन गैस टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस, ऑल दीज थ्री species are in gaseous state. If you balance this equation, so on the left hand side you have 3 moles of gases altogether, and on the right hand side you have 2 moles of gases. If you increase the pressure of this particular reaction, position of equilibrium will shift towards right hand side, and if you decrease the pressure of this particular reaction, the position of equilibrium will shift towards left hand side. प्रेशर मैं इंडिविजुअली रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का अकेले का चेंज नहीं कर सकता, प्रेशर जब मैं चेंज करूंगा तो पूरे सिस्टम का चेंज होगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दोनों का साथ ही चेंज होगा। कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की इंडिविजुअली चेंज कर सकता हूँ, प्रेशर नहीं कर सकता। ठीक है यहाँ तक बात। और जो थर्ड फैक्टर था दैट अफेक्ट्स द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वाज टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर का इफेक्ट देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट वेदर द फॉरवर्ड रिएक्शन, जो रिवर्सिबल रिएक्शन है उसमें फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। और वो कैसे पता चलेगा? अगर इंथैल्पी चेंज रिवर्सिबल रिएक्शन का पॉजिटिव दिया हुआ तो इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, बट इफ इट्स इंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव देन इट मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सर वो कभी-कभी क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, बिल्कुल लिखा हुआ होता है, यस। So if you are increasing the temperature of such a reversible reaction where forward reaction is endothermic, so increasing the temperature will shift the position of equilibrium towards right hand side, and decreasing the temperature will have an opposite effect, the position of equilibrium will shift towards left hand side. However, if the forward reaction is exothermic and you increase the temperature of the forward reaction, if you increase the temperature of that system, the position of equilibrium will shift towards left hand side. मतलब बिल्कुल अपोजिट होगा, जैसे एंडोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे जा रहा है तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर इंक्रीज करने से लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा, और टेम्परेचर डिक्रीज करने से राइट हैंड साइड पे चला जाएगा। तो ये सारी चीजें हमने 2 क्लासेस में पीछे डिटेल में डिस्कस की थी, जिसका हमने एक क्विक रिकैप ले लिया। अब जो आगे हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ना, वो रिवर्सिबल रिएक्शन का ही पार्ट है। चैप्टर अलग है बट वो रिवर्सिबल रिएक्शन की ही नॉलेज से आगे उसमें बहुत सारी चीजें देखोगे। और फिर जब हम पास पेपर्स करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन और नाइट्रोजन एंड सल्फर के मिक्स होते हैं पास पेपर, तो साथ करेंगे। इस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट राइट नाउ इज नाइट्रोजन एंड सल्फर। ठीक है, वो अभी स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है? नहीं सर। आगे बढ़े फिर आज। सल्फर किस चीज का चैप्टर है, लाइक किस बारे में? देखो हमारे पास 2 रिएक्शंस हैं, हेबर प्रोसेस एंड कांटेक्ट प्रोसेस, जिसमें जो जैसे इक्वेशन लिखी हुई है ना अभी सामने, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्टिंग विद अमोनिया, याद आ गया। सही इसका सही नाम सही हेबर याद आ गया। प्रोसेस। और फिर दूसरा जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं दैट इज कांटेक्ट प्रोसेस। तो ये दोनों चैप्टर्स जो है ना हमें रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ ही पढ़ने होते हैं। मतलब ये चैप्टर अलग से नहीं है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन का ही पार्ट है। रिवर्सिबल रिएक्शन की जो नॉलेज है वो इसी चैप्टर में सारी यूज होगी। जी जी सही है सर, ओके याद आ गया। याद आ गया, बस इसका हैंडआउट मैंने अलग बनाया हुआ। अच्छा, अब बिफोर स्टार्टिंग नाइट्रोजन अमोनिया कैसे बनता है, पहले हम अमोनिया के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हम चीजें पढ़ चुके हैं। अमोनिया गैस का जो फॉर्मूला है दैट इज NH3। अमोनिया जो है वो रूम टेम्परेचर पे गैस होती है, उसकी बॉन्डिंग हमने केमिकल बॉन्डिंग में बनाई है। नाइट्रोजन इज फ्रॉम ग्रुप 5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में इट हैज 5 इलेक्ट्रॉन्स। नाइट्रोजन मेक्स 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि ग्रुप 5 में है ना, जैसे ग्रुप 4 के एलिमेंट्स दे मेक 4 कोवलेंट बॉन्ड्स, ग्रुप 5 एलिमेंट्स दे हैव टू मेक 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, ग्रुप 6 एलिमेंट्स दे मेक 2 कोवलेंट बॉन्ड्स, और जो ग्रुप 7 एलिमेंट्स हैं दे मेक 1 कोवलेंट बॉन्ड। सिमिलरली हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल व्हिच मेक्स 1 कोवलेंट बॉन्ड। So nitrogen, it is from group 5. It has 5 electron in its outermost shell. It shares its 3 electron and 1
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टेस इन द आउटरमोस्ट शेल। हाइड्रोजन जो है वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ये अमोनिया की बॉन्डिंग आप ऐसे भी बना सकते हो, इसी तरह से भी बना सकते हो, जिसको हम डॉट एंड क्रॉस कहते हैं। अमोनिया में जो बॉन्डिंग है दैट इज कोवेलेंट। ये कलरलेस गैस होती है। इसका स्मेल जो है ना वो पंजेंट स्मेल है, मतलब इट इज अनप्लेजेंट स्मेल, आपको अच्छी नहीं लगेगी। एल्कलाइन गैस है। एल्कलाइन गैस कहते हैं या इसको हम बेसिक गैस कहते हैं। जो हमने टेस्ट फॉर अमोनिया पढ़ा होता है टेस्ट फॉर आइंस में, दिस इज बेसिक गैस या फिर एल्कलाइन गैस। बिकॉज इसका टेस्ट क्या है, इट टर्न्स द डैम रेड लिटमस पेपर ब्लू। देखो भाई, अमोनिया जो है ना उसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अमोनिया व्हेन dissolved into water it forms aqueous ammonia. Aqueous means anything dissolved into water. एंड एक्वस अमोनिया हम लिख तो इस तरह से रहे हैं, लेकिन अंदर पानी के अंदर इसका जो फॉर्मूला बना हुआ होता है ना एक्वस अमोनिया का, दैट इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली इज एन alkali because when ammonium hydroxide is formed in aqueous solution it ionizes to give ammonium ions NH4 plus 1 ion and hydroxide ions. Or any substance that give hydroxide ions in aqueous solution is known as alkali. Ammonia is a basic or alkaline gas because when it dissolves into water, it produces alkali ammonium hydroxide, which ionizes to give ammonium ions and hydroxide ions. So presence of this hydroxide ions in the solution gives the alkalinity to the solution. और ये जो अमोनिया है ये एल्कली है, लेकिन ये वीक एल्कली है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड होता है ना, एसिड दैट कंप्लीटली आयोनाइजेस इनटू एक्वस सॉल्यूशन, an acid that ionizes partially into aqueous solution are weak acid. Similarly, alkalis भी strong alkali होते हैं, weak alkali होते हैं. Ammonium hydroxide is one of those weak alkalis. It ionizes, but it ionizes partially in aqueous solution. तो इसकी इसलिए मैंने रिवर्सिबल का साइन बनाया है। तो जब भी कोई भी चीज पार्शियली आयोनाइज होती है तो रिवर्सिबल का साइन बनाते हैं। अब याद है हम लोग जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको जब वाटर में डालते हैं तो इट आयोनाइजेस कंप्लीटली इनटू एक्वस सॉल्यूशन व्हिच गिव्स H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो इसमें जो हम रिएक्शन का साइन बनाते हैं वो इरिवर्सिबल बनाते हैं। मतलब एक बार HCl आयोनाइज हो गया तो हो गया, बात खत्म। ये कभी भी H पॉजिटिव आयन और Cl नेगेटिव आयन वापस मिलके पीछे नहीं जा सकते। देयर इज नो बैकवर्ड रिएक्शन। हाउएवर in case of weak acids like ethanoic acid, so ionization is reversible. Reversible means ethanoic acid will ionize to give H positive ion. मतलब ये इथेनोइट आयन देता है CH3 C double O negative ion and H positive. So sir, what is the reason कि ये वाला हो जाता है रिवर्सिबल और ये वाला इरिवर्सिबल है? ये इसका रीजन क्या है? क्यों नहीं होता? We are not supposed to know the reason in O level. बस आपको ये याद होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, और ऑर्गेनिक एसिड्स दोज आर वीक एसिड्स। और वीक एसिड्स की अगर इक्वेशन लिखेगा तो उसमें आप आयनाइजेशन में जो साइन बनाओगे वो फिर रिवर्सिबल का बनाओगे। बस इतनी बात पता होनी चाहिए। ठीक है। And of course there is a reason, but we are not going to discuss that. But sir, how identify which one is strong and which one is the weak acid? See, he won't ask you to identify which one is a strong acid, which one is a weak acid. For example, if I give you formula of the two acid like hydrochloric acid and nitrous acid, by looking at these formula you cannot determine whether HCl or nitrous acid they are both weak acid or strong acid. आप नहीं बता सकते। हाँ, कुछ एसिड स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको हम फिर भी याद कर लेंगे, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, बट वो आपको बताएगा कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक एसिड। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसका अगर पीएच बता रहा है तो 1 से लेके 3 के बीच में होता है। और अगर दिया तो लिख देता है क्वेश्चन में, फॉरवर्ड लिख देता है स्ट्रॉन्ग एसिड, और वीक एसिड लिख देता है इज अ वीक H पॉजिटिव आयन Cl नेगेटिव आयन। अब ये जो इसमें साइन बना हुआ है ना इरिवर्सिबल का, तो इरिवर्सिबल मींस कि दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो एरो सिंगल एरो है, इट मींस दिस रिएक्शन इज एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। वंस दिस गोस इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन it cannot go back to the backward direction. But if we consider nitrous acid which is HNO2,
So by looking at the formula, you cannot say whether it is a strong acid or weak acid. But in the question, he gives the equation like this. Nitrous acid के ionization के साथ he gives a sign of reversible reaction. So the presence of this sign reversible reaction confirms you that this must be a weak acid, because once the ionization is done, this H positive ion and this nitrite ion can again join back together to form this acid molecule. तो अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है तो वो वीक एसिड है. सही है. इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड वो आपसे कभी भी नहीं पूछेगा कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक. However, in organic chemistry, we will study about few acids जिनके नाम ही अलग होते हैं, like methanoic acid. Its formula is HCOOH. Then we have ethanoic acid. ये हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके नाम बनाना भी सीखेंगे और फॉर्मूला बनाना भी सीखेंगे. इथेनोइक एसिड इज CH3COOH. Then we have propanoic acid. Propanoic acid is C2H5COOH. तो ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड्स. ये आपको आइडेंटिफाई आप कर लोगे ऑर्गेनिक एसिड्स को. बहुत सिंपली, बहुत आसान सा काम है, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखेंगे. तो लेकिन ये आपको याद करना पड़ेगा कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं दे आर ऑल वीक एसिड्स. इसके अलावा कोई नहीं पूछ सकता बाहर से लाके कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है. ठीक है अली, बात समझ आ गई? जी सर, बात समझ आ गई. थैंक यू. ओके, आगे बढ़े. जी जी. चलो, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब हम बनाते थे वहां पे फायदा समझ आया कि वो वीक एसिड्स को रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए क्यों शो करते थे, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में जाता है वो रिवर्सिबल रिएक्शन. अच्छा, अमोनिया इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर. अमोनिया डिसॉल्व्स इनटू वाटर टू फॉर्म अमोनियम हाइड्रोक्साइड. इट इज लाइटर देन एयर. अब देखो एयर जो है, अब कोई भी चीज अगर मैं दो गैसेस को कंपेयर कर रहा हूँ, लेट्स से कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस, तो we have to find their molecular masses. कार्बन डाइऑक्साइड का जो MR आता है, कार्बन का एटॉमिक मास इज 44 ग्राम. नाइट्रोजन इज 14 into 2, that is 28 gram. So mass of nitrogen gas is less, so nitrogen is lighter than carbon dioxide, और कार्बन डाइऑक्साइड हैवियर है. अच्छा, लाइटर गैस को हम ये भी कह सकते हैं दिस इज लेस डेंस, और कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर डेंस. लेकिन अगर मैं अमोनिया की बात कर रहा हूँ तो अमोनिया का जो MR बनेगा दैट इज 17 ग्राम. अमोनिया NH3 है ना अमोनिया का फॉर्मूला. तो नाइट्रोजन एक है, 3 हाइड्रोजन है, तो अमोनिया का MR बनता है 17 ग्राम. लेकिन क्या अमोनिया, मैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो अमोनिया को कंपेयर कर सकता हूँ ना, क्योंकि उसका मास जो है वो 44 ग्राम है. तो अमोनिया इज lighter than carbon dioxide gas and also lighter than nitrogen gas. एयर से कैसे कंपेयर करोगे? एयर का MR तो नहीं पता. एयर बेसिकली हमारे पास एयर जो होती है ना, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर में एक गैस तो नहीं होती. एयर हैज ऑक्सीजन, एयर हैज नाइट्रोजन. इट हैज 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन. एयर इज नॉट कंप्लीटली ऑक्सीजन. एयर इज 78% नाइट्रोजन gas, 21% oxygen gas, then it has 0.04% carbon dioxide gas. So air is not just oxygen now. Okay. Don't worry about it. ये हमारे पास एक और चैप्टर है एयर एंड एटमॉस्फेयर के नाम से, उसमें एयर को भी डिटेल में पढ़ लेंगे. अच्छा जी, तो एयर का मास तो एवरेज मास निकालेंगे ना इन सारी गैसेस का परसेंटेज के हिसाब से. जैसे आपके 3 कंपोनेंट्स होते हैं ना, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 4, तो आपका जो एवरेज ग्रेड निकलता है, तो पेपर 1 का, पेपर 2 का, पेपर 4 का इक्वल परसेंटेज थोड़ी लेते हैं. पेपर 2 का ज्यादा लेते हैं, पेपर 1 का कम लेते हैं, पेपर 4 का सबसे कम लेते हैं. सिमिलरली जिसकी परसेंटेज ज्यादा है एयर में उसका मास ज्यादा काउंट होगा, जिसकी कम है उसका कम काउंट होगा. तो अभी हम ये नहीं सीख रहे कि किस तरह से एयर का एवरेज MR निकालना है, लेकिन अभी आपको मैं वैल्यू बता रहा हूँ बस. तो MR ऑफ एयर जो होता है ना, इट इज नियर अबाउट 28.8 ग्राम. बस ये याद कर लो अभी फिलहाल.
तो अमोनिया लाइटर होगी ना, 28 ग्राम से कम है उसका मास, तो अमोनिया इज लाइटर देन एयर। और So जो sir, गैस it will not लाइटर ask for देन the एयर, so it will not ask for the MR of derivation of MR of this air. नो कैलकुलेशन देखो, फॉर नाउ आप सिर्फ याद कर लो, बट आगे वी विल स्टडी एयर एंड एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर, तो उसमें वी विल लर्न हाउ टू फाइंड दिस एमआर वैल्यू, ठीक है, वहां पे पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये याद रखो। क्लियर है? सो फार सो गुड, आगे बढ़े। जी जी। ओके, तो अमोनिया इज लाइटर देन एयर, ठीक है, तो इट स्टेज अबव द एयर, मतलब अगर कहीं पे अमोनिया गैस लीक हुई है तो वो थोड़ा ऊपर रहेगी एयर से। सो अमोनिया गैस एडवाइज इनहेल नहीं कर सकते, इसकी एक तो स्मेल बहुत बुरी है, ऊपर से इट विल कॉज हार्म टू योर लंग्स। तो अगर कहीं पर अमोनिया गैस बहुत ज्यादा लीक हो जाती है तो इट इज एडवाइजेबल कि आप जमीन पे लेट जाओ और क्रॉल करके बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो लाइटर देन एयर है तो एयर से थोड़ा ऊपर होती है, ग्राउंड से थोड़ा सा ऊपर होती है। चलें आगे बढ़े हम। जी सर, आगे बढ़ जी। अच्छा जी, रिएक्शन जिनमें अमोनिया प्रोड्यूस्ड होती है, देखो एक रिएक्शन हम लोग एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में पढ़ते हैं, रिएक्शंस ऑफ अमोनियम सॉल्ट्स विद अल्कली। देखो अमोनियम सॉल्ट्स क्या होते हैं, जिसमें हमारे पास अमोनियम आइनो which is NH4+1, सॉल्ट बनाने की नेगेटिव। सिमिलरली if we have ammonium ion attached with nitrate ion NO3, ammonium nitrate NH4NO3, और इसका नाम क्या होगा, दिस इज अमोनियम नाइट्रेट। अगर NH4 पॉजिटिव आइन सल्फेट आइन के साथ अटैच्ड है तो दिस द फॉर्मूला वुड बी NH4 ब्रैकेट 2SO4, क्योंकि सल्फेट का जो 2 है वो पूरे अमोनियम आइन के लिए जा रहा है ना। इसका नाम क्या होगा, दिस इज अमोनियम सल्फेट। इसी तरह अगर आपसे अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला पूछा जाए तो अमोनियम आइन इज NH4+1, एंड फॉस्फेट आइन का फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वो जो पॉलीएटॉमिक आइंस की हम लिस्ट याद करते हैं बॉन्डिंग के चैप्टर में, NH4 3PO4, दिस इज अमोनियम फॉस्फेट। अच्छा, एल्कलीज क्या होती हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। मतलब इसमें एक मेटल आइन हो, जैसे फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आइन है, और हाइड्रोक्साइड आइन क्या होता है, OH नेगेटिव। तो जो फॉर्मूला बनेगा ये होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, दिस इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह सोडियम आइन अगर हाइड्रोक्साइड आइन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो दिस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अल्कलीज होती हैं। अब बेसिकली जो हम रिएक्शन देखना चाह रहे हैं ना, वो हम देखना चाह रहे हैं अमोनियम सॉल्ट और अल्कलीज का, बिकॉज अमोनियम सॉल्ट, अब कोई भी इनमें से अमोनियम सॉल्ट अगर हमारे पास हो तो वो रिएक्ट करता है एल्कली के साथ जो कि मेटल हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में बनता है सॉल्ट
साथ में वाटर और साथ में बनती है अमोनिया गैस। अब इनमें से कोई भी अमोनियम सॉल्ट ले लो, लेट्स से वी हैव अमोनियम नाइट्रेट, और इसको हम रिएक्ट करवा देते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। और इस रिएक्शन मिक्सर जब हम हीट करते हैं, अच्छा सॉरी, सॉल्ट तो अब सोडियम का बनेगा ना, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट ऑलरेडी बना हुआ है। तो सोडियम मेटल एंड नाइट्रेट आइन, दे विल ज्वाइन टू फॉर्म सोडियम नाइट्रेट वाटर, और साथ में कौन सी गैस बनेगी? अमोनिया गैस। तो जो अमोनिया गैस बन रही है इस रिएक्शन में, अब हम अमोनिया का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो जाहिर है वो वाले रिएक्शन भी देखेंगे ना, जिन जिन रिएक्शन में अमोनिया गैस बन रही है। ये रिएक्शन आपने याद रखना है, अमोनियम सॉल्ट्स आर heated with alkalis, then सर ये produce आपने जो एरो पर है ammonia। ऊपर का, तो जो मेटल प्लस बेस, मतलब एसिड प्लस बेस वाला जो वो होता है, तो उसके अंदर मेटल प्लस बेस जब होता है तो हीट करने तब की भी जरूरत हीट नहीं, करते हैं या फिर सिर्फ उसको हीट करने की कंबाइन जरूरत करते नहीं हैं? है। अच्छा, ये लिख लिया है सबने? ये लिख लो प्लीज। डन। जी डन। हो गया सर। अच्छा अक्सर, ओके, अक्सर क्वेश्चंस में ना इस तरह की डायग्राम बनी हुई आपको दिखेगी। जो अमोनिया गैस हम प्रोड्यूस करते हैं ना अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करवा के, देखो ये दिया हुआ है अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो दिस इज द अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम सॉल्ट को ये रिएक्ट करवा रहे हैं एल्कली के साथ, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसको हीट कर रहे हैं नीचे से। जो नीचे जो ये लगा हुआ है, दिस इज बंसन बर्नर, जिसमें फ्लेम है। अब क्या हो रहा है कि इसमें अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड हो रही है, और अमोनिया गैस प्रोड्यूस्ड होके ये कैल्शियम ऑक्साइड टावर है। बेसिकली दिस इज कैल्शियम ऑक्साइड टावर। इसका पर्पस क्या है कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है, इट एब्जॉर्ब्स वाटर, क्योंकि अमोनिया गैस के साथ वाटर भी प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो वो भी गैस स्टेट में प्रोड्यूस हो रहा है। सॉल्ट तो यहीं पे रह जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है वो तो यहीं पे रुक जाएगा, लेकिन वाटर और अमोनिया गैस, वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर बन रहा है, तो वो इसमें से पास करेगा कैल्शियम ऑक्साइड टावर में से, तो इट एब्जॉर्ब्स वाटर, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और सिर्फ जो फिर पास होगी गैस, वो कौन सी गैस होगी? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस यहाँ पे कलेक्ट कर लिया हमने। क्लियर है ये बात?
अभी हैंडआउट मैं आपको भेज दूंगा, आप लोग जो है डायग्राम बनाने के लिए तो नहीं आती, बस एक बार देखना जरूर डायग्राम को, क्योंकि ये अक्सर डायग्राम बनी हुई दिखेगी क्वेश्चन में। अच्छा, अब और भी रिएक्शंस हैं जिसमें अमोनिया गैस बनती है। एक तो ये रिएक्शन हो गया अमोनियम सॉल्ट का। दूसरा रिएक्शन है नाइट्रेट आयंस का, जो हमने टेस्ट, जिन्होंने एसिड बेसिस पढ़ा है उन्होंने नाइट्रेट आयन का टेस्ट देखा था। वो टेस्ट क्या था कि अगर किसी सोल्यूशन में नाइट्रेट आयन है, लेट्स से पोटेशियम नाइट्रेट है, और पोटेशियम नाइट्रेट में अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालें और उसको हीट करें और साथ में एल्यूमिनियम मेटल डालें इन द फॉर्म ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल, तो एल्यूमिनियम फॉइल घरों में यूज करते हैं ना, उसी के छोटे छोटे पीसेस करके डाल देते हैं और उसको हीट करेंगे तो उसमें से भी अमोनिया गैस निकलेगी। अच्छा, हम कंफर्म कैसे करते हैं कि अमोनिया गैस निकल रही है? अब जवेरिया क्या रिपीट करने का कह रहे हो? ऊपर वाला रिएक्शन या नाइट्रेट वाला? देखो, ऊपर हमने ये बात की है कि जब अमोनियम सॉल्ट्स रिएक्ट करते हैं किसी एल्कली के साथ, अब जरूरी नहीं है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या अमोनियम सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड ही हो, अमोनियम नाइट्रेट भी हो सकता है और एल्कली जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी हो सकते हैं। तो इस रिएक्शन में अमोनिया गैस बनेगी। तो अमोनिया गैस जो बन के निकल रही है ना, उसके साथ वाटर भी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, गैस फॉर्म में। तो उसको हम पहले कैल्शियम ऑक्साइड टावर से पास इसलिए करते हैं क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो वाटर वेपर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी जो अमोनिया गैस है वो फिर निकल के ऊपर कलेक्ट कर लेंगे हम। सही है? और दूसरा रिएक्शन जिसमें अमोनिया गैस बनती है, अगर हमारे पास कोई नाइट्रेट सॉल्ट है, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है, इसके अलावा और भी नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं हमारे पास, लाइक कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। जब उनको सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल के साथ हीट करते हैं तो उसमें भी अमोनिया गैस प्रोड्यूस होती है। और क्या प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये याद होना चाहिए कि वेन एवर नाइट्रेट आइंस आर प्रेजेंट इन एनी सोल्यूशन, उसमें हम अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम मेटल डाल के हीट करेंगे तो इट विल प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अच्छा, अब अमोनिया गैस बन रही है वाकई में, वो कंफर्म कैसे करेंगे? अब अमोनिया गैस की स्मेल होती है पंजेंट स्मेल, लेकिन हम लेबोरेटरी में कभी भी सेंसेस को यूज करके किसी भी चीज को आइडेंटिफाई नहीं करते, वो डेंजरस है। तो हम लोग अमोनिया गैस का टेस्ट भी याद रखो। अमोनिया गैस क्या करता है बेसिकली, क्योंकि अमोनिया गैस बेसिक इन नेचर होता है, हमारे पास होता है रेड लिटमस पेपर, उसको ना हम वेट करके रखते हैं, मतलब डैम्प रेड लिटमस पेपर लेते हैं, डैम्प लिख लो या वेट लिख लो। तो जब भी वेट रेड लिटमस पेपर अमोनिया गैस के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो लिटमस पेपर अपना कलर रेड से कर लेता है ब्लू। मतलब लिटमस पेपर का कलर अगर रेड टू ब्लू चेंज हो रहा है तो इट मीन्स कि अमोनिया गैस प्रेजेंट है। सही? चलो, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जरा ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है विच कंपाउंड विल नॉट प्रोड्यूस अमोनिया व्हेन ट्रीटेड विद अमोनियम सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट एक अमोनियम सॉल्ट है, तो कौन सी चीजें अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाती है? अभी हमने देखा एल्कलीज, मतलब बेसिस, मेटल ऑक्साइड्स या मेटल हाइड्रोक्साइड्स। अब क्योंकि मेटल सर ऑक्साइड्स भी डी। तो बेसिक इन नेचर होती है ना। हाँ, तो ये बेस है हमारे पास मेटल ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड भी हमारे पास बेस है, ये भी अमोनिया बनाएगी। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बेस है या एल्कली है। सल्फ्यूरिक एसिड एसिड है। हमने ये तो नहीं पढ़ा कि अमोनियम सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस बनाते हैं। तो एसिड्स डू नॉट रिएक्ट विद अमोनियम सॉल्ट्स टू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। चाहो तो ये बात लिख भी लो, एसिड्स डू नॉट react with
ammonium salts to produce ammonia gas. सिमिलरली यही क्वेश्चन एक और तरीके से भी पूछता है, विच टाइप ऑफ कंपाउंड विल लिबरेट, लिबरेट मतलब रिलीज करना, इवॉल्व करना, इसकी जगह इवॉल्व का वर्ड भी यूज करता है और रिलीज का वर्ड भी यूज करता है। मतलब इन शॉर्ट वो पूछ रहा है कि कौन सा कंपाउंड अमोनिया गैस रिलीज करेगा व्हेन हीटेड विद अमोनियम बी सल्फेट। अब अमोनियम सल्फेट अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम सॉल्ट के साथ कौन रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस अमोनिया, बेस या एल्कली? तो अगर यहाँ पे बेस लिखा हुआ है या एल्कली लिखा हुआ है तो वो हमारा आंसर है। तो इस हिसाब से क्या आंसर हो जाएगा, बी। क्लियर है, आगे बढ़े। थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताओ, विच मेथड वुड नॉट प्रोड्यूस अमोनिया गैस? डी 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 फॉर डॉग। डी फॉर डॉग, ओके। हीटिंग अमोनियम सल्फेट विद एसिड, एसिड के साथ अमोनियम सॉल्ट अमोनिया गैस नहीं बनाते। अच्छा, जो ऑप्शन ए है उसमें कह रहे हैं हीटिंग कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया, मतलब अगर किसी वाटर के अंदर अमोनिया डिसॉल्व्ड है ना, जब एक वाटर सोल्यूशन है जिसके अंदर ना अमोनिया है, डिसॉल्व्ड है अमोनिया एक्वस फॉर्म में, अगर उसको हम हीट करेंगे ना तो अमोनिया गैस उसमें से वेपर बन के निकल जाएगी। इसका मतलब ये, तो अमोनिया गैस तो बन रही है ना, रिएक्शन नहीं हो रहा, कोई फिजिकल चेंज है, बस बॉइलिंग हो रही है एक तरह से, लेकिन अमोनिया गैस निकलेगी उसमें से। बी में कह रहे हैं अमोनियम क्लोराइड विच इज एन अमोनियम सॉल्ट रिएक्टिंग विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है और एल्कली और अमोनियम सॉल्ट अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो ये भी बी में भी होगा। सी में अमोनियम सल्फेट कह रहे हैं, अमोनियम सल्फेट भी अमोनियम सॉल्ट है और सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली है, एल्कली और अमोनियम सॉल्ट दे डू प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो ए बी और सी तीनों में अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी, डी में नहीं होगी, क्योंकि अमोनियम सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्ट करके अमोनिया गैस नहीं बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ दे वोंट रिएक्ट। तो डी इज द आंसर। अच्छा, ये तो छोटे छोटे रिएक्शन है जिसमें थोड़ी थोड़ी अमोनिया बनती है, लेकिन अगर मुझे अमोनिया गैस एक मैस स्केल पे बनानी है, मतलब बहुत ज्यादा बनानी है, क्योंकि अमोनिया गैस जो है ना उसके बहुत सारे यूजेस हैं। अमोनिया गैस के यूजेस क्या हैं कि अमोनिया गैस जो है वो आपकी यूज होती है इन ऑर्डर टू मेक फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है, क्योंकि फर्टिलाइजर बनती है उसकी वजह से एग्रीकल्चर अच्छा होता है, क्रॉप ज्यादा ग्रो होती हैं और क्रॉप्स जो है वो फूड है आपके लिए, ठीक है। तो फर्टिलाइजर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो अमोनिया गैस जो है ना वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए यूज होती है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा अमोनिया गैस बनानी पड़ती है। सिमिलरली एसिड्स बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन होता है ना जो कि अमोनिया से आता है। नायलॉन बनाने के लिए अमोनिया गैस यूज होती है, नायलॉन इज क्लोथिंग, जो आप कपड़े होते हैं नायलॉन के, उसकी बात हो रही है। फिर डाइस वगैरह कलर्स बनाने के लिए, कपड़ों के जो कलर होते हैं वो वगैरह वो बनाने के लिए अमोनिया गैस यूज होती है। अमोनिया इज ऑल्सो यूज एज ए क्लीनर, मतलब सफाई वगैरह करने के लिए, ब्लीचिंग एजेंट्स, डिटर्जेंट्स वगैरह बनाने के लिए। और कुछ सेल्स भी होते हैं, सेल्स मतलब वो जो बैटरीज होती है ना, कुछ सेल्स के लिए भी हम अमोनिया यूज करते हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट काम अमोनिया का हमारे पास किसी भी कंट्री के लिए वो फर्टिलाइजर बनाना होता है। तो अब फर्टिलाइजर तो जाहिर है मैस स्केल पे बनती है ना, बहुत ज्यादा बनती है, तो उसके लिए एक मैस प्रोडक्शन चाहिए अमोनिया की। और वो जो अभी तक हमने जितने भी रिएक्शंस पढ़े ना, ये ऊपर जो हमने पढ़े थे, वो मैस प्रोडक्शन नहीं है अमोनिया की। तो जो मास प्रोडक्शन के लिए हम अमोनिया गैस बनाते हैं वो हेबर प्रोसेस है। और ये रिएक्शन हम बार बार देखते आए हैं कि नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है अमोनिया गैस, ठीक है। इस रिएक्शन को, क्योंकि जिस साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन इंट्रोड्यूस करवाया था उसका नाम हेबर था, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं हेबर प्रोसेस। और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन के चैप्टर में पढ़ रहे हैं अमोनिया को हम लोग। अब अमोनिया गैस बनाने के लिए
हमें रॉ मटेरियल्स क्या चाहिए? रॉ मटेरियल समझते हो ना, किसी भी चीज को बनाने के लिए जो आपको चीजें चाहिए, दोज आर नोन एज रॉ मटेरियल्स। तो अमोनिया गैस बनाने के लिए वी नीड नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस कहाँ से आएगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ से आएगी? देखो, नाइट्रोजन गैस तो हमारे पास एयर में होती है, एयर इज 78% नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन गैस तो हम एयर से निकालेंगे। अब एयर से कैसे निकालते हैं नाइट्रोजन गैस, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे। बस आपने अभी ये याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस इज टेकन आउट बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। बस ये वर्ड याद रखना अभी, या आगे जब हम एक्सपेरिमेंटल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पे हमें पता होगा कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। और हाइड्रोजन गैस निकलता है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम होता है क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जिसमें से पेट्रोल वगैरह निकलते हैं ना, तो उसी की क्रैकिंग करके, क्रैकिंग मतलब ब्रेक डाउन करके हम लोग हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर में। फिलहाल आपने बस ये याद रखना है कि नाइट्रोजन गैस एयर में से लेते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके, और हाइड्रोजन गैस पेट्रोलियम में से लेते हैं उसकी क्रैकिंग करके। और ये जो रिएक्शन है, ये हेबर प्रोसेस कहते हैं इसको, जिसमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस reacts with 3 mole of hydrogen gas to produce 2 mole of ammonia gas। और ये रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, बस ये याद रखना है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है। सही है। वैसे इसकी जो वैल्यू होती है वो तकरीबन होती है -92 किलो जूल पर मोल। अब नेगेटिव इंथैल्पी चेंज है, इट मींस दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अच्छा, दूसरी बात, अब देखो रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं। रिएक्शन कंडीशंस वो होती हैं जिन कंडीशंस पे कोई रिएक्शन प्रॉपर्ली हो जाए। रिएक्शन कंडीशंस हमारे पास, देखो कुछ चीजों को हीट करना पड़ता है, कुछ चीजों में कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है। तो पहली बात तो कैटलिस्ट जिन्होंने अभी नहीं पढ़ा है, हमने वैसे रेट ऑफ रिएक्शन में कैटलिस्ट पढ़ा था। कैटलिस्ट का काम क्या है? टू स्पीड अप अ केमिकल रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अगर स्लो है तो उसको फास्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट यूज होता है, वो आयरन यूज होता है। हमने मेटल्स के चैप्टर में देखा था ना कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं दे आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, वो हम क्या यूज करते हैं? आयरन। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल है। इसी तरह टेम्परेचर क्या रखते हैं? 450 डिग्री सेल्सियस का। अच्छा, अब ये याद रखना है आपने सारी कंडीशंस। टेम्परेचर जो है हम 450 डिग्री सेल्सियस का यूज करते हैं, प्रेशर जो है हम 200 एटमॉस्फेयर का यूज करते हैं, और आयरन इज अ कैटलिस्ट। प्रेशर का एक और यूनिट होता है पैस्कल्स। अगर मैं इसको पैस्कल्स में लिखूं ना तो ये हो जाएगा 20,000 किलो पैस्कल्स। तो आप चाहे तो पैस्कल्स में याद कर लो, चाहे एटमॉस्फेयर में याद कर लो, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में याद करेंगे, और आयरन इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। तो ये रिएक्शन कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए फॉर हेबर प्रोसेस। इसको मैं समराइज करके एक जगह पे लिख देता हूँ। देखो, जो हेबर प्रोसेस है ना, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं उसकी इक्वेशन सबसे पहले याद रखो। इक्वेशन याद रखोगे तो बाकी चीजें खुद ही याद आ जाएंगी। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है इसकी। सेकेंडली, टेम्परेचर इस रिएक्शन का हम लेंगे 450 डिग्री सेल्सियस। प्रेशर क्या रखेंगे इसका? 200 एटमॉस्फेयर। एटीएम इज द यूनिट फॉर प्रेशर, एटमॉस्फेयर, या फिर आपने पैस्कल्स या किलो पैस्कल्स पढ़ा होता है, 20,000 किलो पैस्कल्स। और जो हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं इस रिएक्शन में, दैट इज आयरन मेटल, विच इज Fe, उसका सिंबल होता है। ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सोथर्मिक है, क्योंकि इसका इंथैल्पी चेंज जो है वो नेगेटिव है। मतलब दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। क्लियर?
और इस रिएक्शन को करने के लिए नाइट्रोजन गैस हम कहाँ से लाएंगे? एयर में से, और एयर की हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर। और हाइड्रोजन गैस हम कहाँ से लाएंगे? पेट्रोलियम में से, क्रूड ऑयल में से, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम या फिर क्रूड ऑयल। और जो अमोनिया गैस बन रही है उसका काम क्या है, क्यों बना रहे हैं? बहुत सारे कामों में से सबसे इंपॉर्टेंट काम है फर्टिलाइजर्स बनाना, नायलॉन बनाना, एक्सप्लोजिव्स भी बनते हैं इसके, बॉम्ब वगैरह बनाने में भी यूज होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड बनाना एटसेट्रा। बट मेजर यूज इज फर्टिलाइजर, जो आपको याद होना चाहिए। कैटलिस्ट क्यों यूज करते हैं? टू स्पीड अप रिएक्शन। सही है, ये सारी चीजें आपको हेबर प्रोसेस के बारे में याद होनी चाहिए। कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, ये सारी बातें लिख लो और फिर बाकी हम आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये यहाँ तक याद करके आना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में बस एक रिएक्शन और है कांटेक्ट प्रोसेस का, उसके बाद पास पेपर स्टार्ट कर देंगे इसके।